نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل SHS اسپریچولیٹی۔ آج کا جو موضوع ہے نہ صرف اس زمانے کے لیے اور اس پرانے زمانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لیے بلکہ اس زمانے کے لیے بھی تھا، جب اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توحید اور وحدانیت بیان کرتے تھے اور لوگ مسلمان ہوتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ ان کے چچا بھی ابو جہل بھی مسلمان ہو جائیں اور نار جہنم سے ان کو چھٹکارا مل جائے۔ اس کے علاوہ جو یہودی کاہن آئے تھے احیی بن خطب، وہ کفار مکہ کے ساتھ ایک گروہ کی صورت میں آئے اور انہوں نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ہمارے 3 سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ ان 3 سوالوں کے بارے میں میں نے کل لائیو کی تھی، ان لائیو میں نے مکمل ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے، جو کہ اس وقت یہودیوں کا خیال تھا کہ اس تورات میں جو کچھ لکھا ہے، زبور میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، وہ کسی عام شخص کو معلوم نہیں ہوگا، اور جو بھی ان سوالوں کا جواب دے گا وہ نبی تو ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ان کا جواب صرف ایک اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور نبی ہی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا تو وہ اپنے وعدے سے مکر گئے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور ہم اللہ کی توحید پر ایمان لے آئیں گے اور ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیے تو وہ واپس چلے گئے، بغیر اسلام کیے، قبول کیے بغیر اور اپنے وعدے کو پورا کیے بغیر وہ چلے گئے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اس میں سمن کا مطلب ہے کہ یہ بہرے ہیں، جب آپ ان کو حق کی طرف بلاتے ہیں مگر وہ بات جو آپ حق کی بات کرتے ہیں وہ ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ بکمن کا مطلب ہوتا ہے گونگے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ باتیں بہت کرتے ہیں مگر حق بات جب انہوں نے کرنی ہوتی ہے تو وہ نہیں کرتے، ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ امیون، اندھے ہیں، وہ کائنات اور معجزات دیکھ کر، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات پوچھنے کے وعدے پر مسلمان ہونا کا جو وعدہ کیا تھا وہ اس وعدے سے مکر گئے، اور اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اس آیت میں کہ یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، لا یرجعون ہیں،
और ये रजू नहीं करेंगे। इससे हमें जो सबक मिलता है वो ये है, और आपको याद भी रखना होगा कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने रूहानी सेंसर जो अल्लाह के नूर को कबूल कर सकते हैं। अल्लाह हमें हक को समझने और अमल करने की तौफीक दे। लेकिन इस दौर में भी ये बात वाज़ेह है कि जब हम किसी को नसीहत करते हैं, हिदायत की तरफ बुलाते हैं, नमाज की तरफ बुलाते हैं, तो वो गूंगे बहरे और सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून हो जाते हैं और उस बात को पसे पुश डालकर चले जाते हैं। तो ये भी उन लोगों में शुमार होने वाले अपने आप को शुमार कराते हैं जो उस जमाने में कुफारे मक्का होते थे और हक बात से मुंह फेर लेते थे। इन पर साइंस का जो ला इस्तेमाल होता है, मून ला इस्तेमाल होता है। मून ला के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब सूरज निकलता है तो आप अगर निजाम शमसी का वो करें तो चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। वो जितना चमकता है, वो जो चमकता है वो इसलिए चमकता है, हमें रोशन रात को इसलिए नजर आता है कि उस पर रोशनी पड़ती है, और उसके जो बाज हिस्से होते हैं उन पर चूंकि रोशनी नहीं पड़ती लिहाजा वो डार्क रहते हैं। इसी तरह जमीन है, आज अभी इस वक्त शाम का टाइम है तो बाज ममालिक में सुबह का टाइम होगा। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह के नूर की रोशनी जो है जब एक जिस्म कबूल करता है तो वो रोशन हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी डीएनए की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और अल्लाह के जिक्र से ही बढ़ती है। तो ये जो मून फार्मूला है, मून का जो फार्मूला है, ये आजकल और उस वक्त के मुसलमानों पर लागू होता है कि ये सुमुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून है। ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, ला यरजून है और कभी रुजू नहीं करते, नहीं करेंगे, ला यरजून। तो मेरा मकसद ये वीलॉग बनाने का ये था कि असर उन लोगों पर होता है, इन चीजों का, हिदायत का और अल्लाह के नूर का असर उन लोगों पर होता है जो इसे कबूल करें, जो इसको तस्लीम करें, जो सुम्मुन बुकमुन उम्युन ना हो, गूंगे बहरे और अंधे ना हो, उन पर यह असर करता है। और मैं इसी वीडियो के तवस्सुत से अपने मुसलमान बच्चों को जो इस वक्त काबिली रस्म रिवाज में लगे हुए हैं, काबिली रस्म रिवाज से मेरा मतलब हमेशा यही रहा है कि काबिल की कौम जो थी उनको शैतान ने जो है वो नाच गाना और मुख्तलिफ सुर सिखाए थे। और आजकल की जो अवाम है और आजकल के जो लोग हैं उनको जब मैं देखता हूं तो ये उन्हीं चीजों से सुकून हासिल करते हैं, लेकिन अंदर से ये वो बेसुकून होते हैं, उनमें मुख्तलिफ खामी आ जाती हैं, वालिदैन के नाफरमान हो जाते हैं, खुद सर हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारी बुराइयां जो हैं उनके अंदर जो हैं पनपने लगती हैं।
जब इस किस्म के हालात हो जाते हैं तो रुश्द व हदायत की रोशनी ही उनको इस जाल से निकाल सकती है, लेकिन उसके लिए चाहिए ये कि वो खुद भी इस तरफ मायल होना चाहिए, बिल्कुल सुम्मुन बुकमुन उम्युन ना हो। लिहाजा वालिदैन को भी कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा वक्त अपनी जिंदगियों में से निकाल के, क्योंकि वालिद अपने मोबाइल पे लगा होता है, माँ अपने मोबाइल पे लगी होती है, घर के काम काज से फारिग होती है तो वो अपना मोबाइल उठा लेती है, बाप बाहर से आता है तो वो अपना मोबाइल उठा लेता है, उसको ना अपने बच्चों की फिक्र होती है ना किसी की फिक्र होती है, सिर्फ ये फिक्र होती है कि मेरे बच्चे को अच्छा खाना मिले और अच्छा पहनावा मिले और अच्छा उसका स्टैंडर्ड हो, बाकी उसके अखलाक और किरदार से जो है मेरे इस जमाने के वालिदैन जो है वो बिल्कुल ही नाबलद हो चुके हैं, वो अपनी अपनी मसरूफियात में लगे रहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी ये वीडियो जो लोग सुन रहे हैं उनको चाहिए कि वो वालिदैन अपने बच्चों को और नहीं तो 45 मिनट के लिए मोबाइल साइड पे रखें और अपने बच्चों को बुलाकर उनको रुश्द व हदायत के लिए कुछ तालीमात दें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका बयान करें, ताकि वो जो फ्रीक्वेंसी जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक हार्डवेयर रखा है तो वो फ्रीक्वेंसी उस हार्डवेयर को फिर से एक्टिव कर दे, रिसेट कर दे, अगर वो सेट नहीं है तो वो उसको रिसेट कर दे। और रिसेट करने का मतलब यह है कि पहले वालिद नमाज पढ़ेगा, नमाज कायम करेगा और अपने बच्चे को अपने साथ नमाज कायम करने के लिए कहेगा, अपने बच्चों को भी इस चीज की तरगीब देगा। लेकिन आजकल दौलत के चक्कर में ये सब कुछ लोग भूल चुके हैं। लिहाजा मेरी इस वीडियो और इस सेशन का वाहिद मकसद जो था वो ये था कि आजकल के वालिदैन को मैं सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, पढ़ते तो सब हैं लेकिन इसके अंदर क्या छुपा हुआ है वो मैं उनके सामने रख दिया है। और मेरा काम यह है कि वालिदैन और बच्चों को, मुसलमान बच्चों को नमाज कायम करने की तरफ और अल्लाह के जिक्र के साथ मुंसलिक कराना है कि वो अल्लाह के जिक्र में मुंसलिक हो जाए। देखिए निजाम शमसी जो है उसमें सूरज और जमीन इसमें का फासला अगर कम या ज्यादा हो जाए तो निजाम शमसी तबाह हो जाता है। तो अल्लाह ताला से अगर हम इतना फासला रख लेंगे तो हम भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। तो उस फासले को कम करने के लिए हमें नमाज कायम करनी होगी, अपने पिछली गुनाहों की माफी मांगनी होगी और जिक्र इलाही में अपने आप के लिए कुछ वक्त निकाल के जिक्र इलाही करना होगा। तब हम उस फासले को अगर कम नहीं कर सकते तो बरकरार रख सकते हैं कि हम अल्लाह के नजदीक हैं। तो ये जो निजाम है ये चलता रहेगा। लिहाजा इसी वजह से मैं आपको कहता हूं कि मेरा काम अजान देना है, बाकी मानना ना मानना। अगर आप सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन है तो नहीं मानेंगे। अगर आप में वो खासियत नहीं है जो इस आयत की है तो आप इस तरफ रुजू करेंगे और मेरी बात पर अमल करना शुरू करेंगे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।